Let's start with the class then today. And why you people always remain in a very silent mode in the school, in class? सबसे ज़्यादा शोर मचाते हो. ताशु, शुभांगी, रौनक, नितिन, निशा, मुस्कान, मधु, हर्षित, गरिमा, दिशा, अंश, अंशु, आदित्य. This Dia is attending the classes of other subject or not? मैम बायो की तो ले रही है. This girl I do not know. Yes. Okay, let's begin with our class itself. So yesterday we did the question answers up to question number 12.9. So let's start with the question number 12.10 today. Your question number 12.10 says an organic compound with a molecular formula C9H10O. C9H10O forms the D4. Why my voice is echoing? Yes, it forms a it forms 2,4-DNP derivative. Then it says that it reduces a tolerance reagent and टॉलेंस रिएजेंट का फॉर्मूला क्या होता है? टॉलेंस रिएजेंट इज AgNH3 2 plus OH minus. Reduces a tolerance reagent and undergoes a Cannizzaro reaction. On vigorous oxidation, इसी compound का there is the oxidation also taking place, and on oxidation it is giving a 1,2-benzene dicarboxylic acid. ओके, ये तीन चीजें इस एक कंपाउंड से हो रही हैं. सो लेट्स लुक व्हाट विल बी द रिएक्शंस ओवर हियर. नाउ वी नीड टू आइडेंटिफाई द कंपाउंड. द कंपाउंड इज सेइंग कि ये क्या कह रहा है? इट इज अंडरगोइंग अ कैनाइज़रो रिएक्शन. Now as the compound is undergoing a Cannizzaro reaction and on oxidation it is giving a acid, therefore it is for sure that it is going to be a aldehyde. ठीक है, अब aldehyde होने के लिए and for the Cannizzaro reaction what it will be, ये हो गए आपके 6 carbon atoms, it is having the 3 more carbon atoms. तो एक तो आपका aldehydic group हो गया and for the another 2 carbon atoms क्या हो गया? CH2 CH3 and we give the bond. It means your compound is this. Let's look, this particular compounds give you the 2,4-DNP derivatives, tolerance reagent and the oxidation इसका होता है या नहीं. CHO CH2 CH3 CH3. Now when it is reacting with the it is giving a 2,4-dinitro derivative. तो पहले हम बना देते हैं 2,4
dinitro derivative, CH double bond NNH. It is going to give you a NO2, NO2, this, and CH2, CH3. This is your 2,4-DNP. अब ये कंपाउंड हमने रिएक्शन करी हुई है, किससे मिलेगा? We will obtain it by the 2,4-diphenyl hydrazone. ओके, नेक्स्ट इट सेज कि ये टॉलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्ट कर रहा है. सो योर टॉलेंस रिएजेंट is what? Ag NH32 plus OH minus. So it is what? CH2 CH3 2-ethyl benzoate plus Ag precipitate, which is your silver mirror. And another उसने कहा कि this compound, particular compound is undergoing a oxidation. So oxidation पे ये क्या दे रहा था? 1,2-benzene dicarboxylic acid. Okay, in this manner you are going to solve this question. Got it? Note it down everyone, and identify the compound के अंदर you are going to write down the compound. Compound आपका क्या था? CHO CH2 CH3. Done everyone? Yes, ma'am. Yes, yes, ma'am. Okay. Now coming to the next question, that is your question number 11. Question number 11 says an organic compound A. 12.11. It says a compound A with a molecular formula C8H10O. This is your A. Was hydrolyzed with the dilute sulfuric acid. Dilute H2SO4 के साथ hydrolysis हुआ तो it gave a carboxylic acid, which is your B, and an alcohol. Alcohol is your C. Oxidation of C, your alcohol has undergone a oxidation with the help of the chromic acid, produced a B, मतलब कि उसने कार्बोक्सिलिक एसिड दिया, and C on dehydration it gives you a but1ene. अब इसका मतलब देखो स्टूडेंट्स, that over here we are confirmed with this कि B and C they both are the same carbon chain compounds. Same carbon chain compounds का मतलब क्या हो गया? यहाँ पे C8 है आपका, तो मतलब कि 4 carbon chain यहाँ पे है, 4 यहाँ पे है, तो means that your particular B and C are what? They are going to be your butanoic acid and butanol. ये आपका क्लियर हो गया यहाँ पे. B is going to be your butanoic acid and C is going to be your butane 1 all. अब alcohol और acid जो हैं, if we are getting it on the hydrolysis with the H2SO4, तो आपका ये वाला कंपाउंड क्या हो गया? A. A is going to be your ester. अब एस्टर ये क्या हुआ? ब्यूटाइल ब्यूटेनोएट.
ओके मैम नाउ लेट, हाँ बेटा मैम ब्यूटेन 1 ऑल कैसे पता लगा? ब्यूटेन 2 ऑल भी तो हो सकता था। कैसे होगा, आपको वो अल्टीमेटली यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड दे रहे हैं ना, क्योंकि तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो तो टर्मिनल चेन हो गया, टर्मिनल चेन फंक्शन ग्रुप हो गया, इसलिए ब्यूटेन 1 ऑल आया, क्योंकि उसने क्या कहा है कि ऑक्सीडेशन हुआ है। ठीक है, अगर वो हमें ऑक्सीडेशन नहीं बोलता तो हम यहाँ पे ये एक्सपेक्ट कर सकते थे कि 2 ऑल भी हो सकता है। अब अगर 2 ऑल होता तो मतलब कि जो आपका ओइक एसिड था वो जो है मींस कार्बोक्सिलिक एसिड जो प्रेजेंट है वो आपका सेकंड पोजीशन पे होगा। ओके रौनक, ओके मैम। अब देखो लेट्स लुक द रिएक्शन। हमें ये पता लग गया कि योर ए कंपाउंड इज द एस्टर, तो लेट्स मेक द एस्टर ओवर हियर। CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O O CH2 CH2 1 2 3 CH2 CH3, this is your ester, that is your butyl butanoate. Now it has undergone a hydrolysis, dilute H2SO4, so it is going to give you the mixture of the acid and alcohol. So CH3 CH2 CH2 COOH, this is your butanoic acid plus alcohol. OH. Butanol. Now this butanol, it is what undergoing a oxidation in the presence of the chromic acid, so it is going to give you a butanoic acid. Over here I have written the name. अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो along the name you need to make the structure also बेटा. And on डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन का मतलब क्या हो गया, वाटर मॉलिक्यूल लिबरेट हुआ, तो इसने क्या करा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 बना दिया, दैट इज योर ब्यूट 1E. ओके गॉट इट. और दूसरी चीज एक और बात रौनक, लाइक इन द क्वेश्चन ओनली दे हैव गिवन अस द हिंट फॉर द 1 ऑल, इसलिए क्योंकि दे आर सेइंग द ब्यूट 1 इन बना. अब आपको ये पता है दैट वाटर हाइड्रोजन जो है एंड ऑक्सीजन इट इज गोइंग टू लिबरेट फ्रॉम विच पोजीशन, यहाँ से लिबरेट होगा फ्रॉम द फर्स्ट पोजीशन, तो डबल बॉन्ड अगर यहाँ पे आ रहा है इट मीन्स OH ग्रुप इज प्रेजेंट ओवर देयर. ओके डन दिस मच बेटा everyone. यस मैम. ma'am. Now coming to the next question, your next question is 12.12. अब your 12.12 question says arrange the following compounds in increasing order of their property as indicated. अब first के अंदर what they have given a acetaldehyde, acetone, di-tertiary butyl ketone, methyl tertiary butyl ketone, and you require to show the reactivity towards HCN. अब this type of the question, first thing कि it depends on the marks, कि वो कितने marks का question है. से suppose अगर ये 1 marks का ही question है तो आपको directly उसके अंदर उसका order लिखना है, increasing order or decreasing order, whatever the question has asked. If the question carries the more marks मतलब 2 marks 3 marks, तो you require to tell the your according to the marks you require to explain the or you require to give the explanation also कि what is the reason behind your given reactivity or your increasing order or the decreasing order. Now in this case what will be the reason, पहले हम reason देखते हैं उसके बाद we will make the order. HCN, when we say the HCN is going to react the compound or you can say
it is going to react with the compound as it is a attacking species is going to be the nucleophile. यहाँ पे आपका attacking species जो है वो nucleophile रहेगा. Now your CN जो है इसके पास क्या है, नेगेटिव चार्ज है. when it is going to attack on the particular compound, तो what is going to happen, the negative charge is going to increase, आपका नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो जाएगा. अब रिएक्टिविटी विद HCN क्या हो जाएगी, इट इज गोइंग टू डिक्रीज इन द कंपाउंड. जब ये अटैक करेगा तो रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी विद द कंपाउंड, इट इज गोइंग टू डिक्रीज. सेकेंड फैक्टर यहाँ पे क्या लगेगा, दैट योर प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है, प्लस इंडक्टिव इफेक्ट इज गोइंग टू इंक्रीज. एंड third effect which bothers over here, that is your steric hindrance. Steric hindrance का मतलब that more the bigger group, more hindrance is going to be over there. अब हमारे पास क्या क्या दे रखा था, एसिटल्डिहाइड. सो एसिटल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या हो गया, दिस. अब यहाँ पे इफ यू आर गोइंग टू लुक योर आई इफेक्ट और योर स्टेरिक हिंड्रेंस, सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, this because of this methyl group, it is going to affect on this carbon atom. okay, यहाँ पे ये तो weaker group है, तो steric hindrance के respect में भी there is only the one bulkier group. coming to the next one, that is your acetone. अब in this particular case there will be the effect of this CH3 and this CH3 also. यहाँ पे आपके पास दो bulkier group आ गए. then coming to the next one, क्या था, डाइटर्शरी ब्यूटाइल कीटोन. अब in this case what is going to happen, there is this CH3, this CH3, this CH3. ठीक है, उसके अलावा इस फंक्शनल ग्रुप पे, यहाँ पे जो कीटोन फंक्शनल ग्रुप है, इस मिथाइल का इफेक्ट है और इस कंप्लीट का फिर इफेक्ट आएगा इसके ऊपर. अनदर कंपाउंड वाज दी अब यहाँ पे क्या हो गया, दिस ऑल, और फिर इसका कंबाइंड इज गोइंग टू कम ऑन दिस कार्बन आटम. सो नाउ टेल मी व्हाट विल बी द योर इंक्रीजिंग ऑर्डर. इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है ना इसने. यस, व्हाट विल बी योर इंक्रीजिंग ऑर्डर टुवर्ड्स द रिएक्टिविटी टुवर्ड्स HCN. किसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी टुवर्ड्स द HCN. जैसे हमने क्या कहा था स्टार्टिंग में, जैसे जैसे नेगेटिव चार्ज इज गोइंग टू इंक्रीज, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स द HCN ऑफ द गिवन कंपाउंड इज गोइंग टू डिक्रीज. अब इस प्रॉपर्टी को देखने के लिए हमने पढ़ा प्लस आई इफेक्ट एंड द स्टेरिक हिंड्रेंस, इजंट इट. तो प्लस आई इफेक्ट एंड स्टेरिक हिंड्रेंस, ये दोनों ही इफेक्ट जो थे यहाँ पे सबसे ज्यादा थे ऑन दिस पर्टिकुलर. अब जब इस पे सबसे ज्यादा नेगेटिव चार्ज आ गया तो व्हाट हैज गोइंग टू कम ओवर हियर, इट मींस कि इसकी जो रिएक्टिविटी हुई टुवर्ड्स द HCN इज गोइंग टू बी द वेरी लेस, इजंट इट. तो ये आपका आ गया फोर्थ नंबर पे. उसके बाद इससे थोड़ा छोटा ग्रुप कौन सा था, ये वाला. ओवर हियर वी वाज हैविंग द 3 मिथाइल ग्रुप्स और एक मिथाइल ग्रुप यहाँ पे था, तो दिस विल कम. और this your acetone, in the case of the acetone there was the 2 methyl groups, so this will come at the second position and this will at the first position. जी बेटा बोलो. मैम इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है. हाँ, इंक्रीजिंग ऑर्डर में ये फर्स्ट आ गया, ये सेकंड आ गया,
ये थर्ड और ये फोर्थ. ओके, Yes, गॉट ma'am. इट, गॉट इट दिस पॉइंट. अब इसके अंदर व्हेन यू आर गोइंग टू राइट डाउन द आंसर, तो ब्रैकेट में ही आया इन द आंसर, अभी शॉर्ट फॉर्म में यू राइट डाउन कि व्हेन HCN रिएक्ट्स विद अ कंपाउंड, तो अटैकिंग स्पीशीज विल बी योर न्यूक्लियोफाइल, दैट इज योर CN. देयरफॉर द नेगेटिव चार्ज इंक्रीजेस ऑन द कंपाउंड. तो जब नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो जाएगा कंपाउंड पे, तो रिएक्टिविटी विद द HCN इज गोइंग टू decrease. And what are the factors we are going to consider? Plus I effect and steric hindrance. If your question comes for the 2 marks or 3 marks, तो आपको ये explanation देना है. If the 1 marks, so just write down like this. और इसका एक तरीका ये भी होता है कि आप ऐसे लिख दो कि यहाँ पे less steric hindrance है और plus I effect जो है वो भी कम है. फिर यहाँ पे आप लिख दो कि यहाँ पे मोर स्टेरिक हिंड्रेंस एंड मोर प्लस आई इफेक्ट. सिमिलरली इन केसेस में लिख लो लाइक दिस ऑल्सो यू कैन राइट डाउन. नाउ कमिंग टू द बी पार्ट. योर बी पार्ट सेज अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर. और यहाँ पे हमें प्रॉपर्टी कंसिडर करनी है योर एसिड स्ट्रेंथ. Now the groups which they have given CH3, CH2, CH, bromine, COOH. Another compound they have given CH3, CH, Br, CH2, COOH. Then CH3, 2, CH, COOH. Then CH3, CH2, CH2, COOH. हमें यहाँ पे ये बताना है that which is going to be the more acidic in the nature. Now let's look what will be the reason over here. Whenever your carboxylic acid is going to lose a proton, proton means H plus ion. जैसी कार्बोक्सिलिक एसिड आपका H plus ion it is going to lose it, what is going to happen? It is going to gain a negative charge. ये हो जाएगा. अब हम ये कहते हैं कि कोई भी ग्रुप जो है वो स्टेबलाइज कब होगा? जब नेगेटिव चार्ज जो है वो इंक्रीज होगा विद द स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोक्सिलिक आयन. देयरफॉर यू कैन से कि जो भी आपका यहाँ पे ग्रुप आया, कार्बोक्सिल ग्रुप आया, वहां पे इंक्रीज स्ट्रेंथ होगी एज अ रिजल्ट ऑफ विच देयर विल बी द इंक्रीज्ड स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड. तो अकॉर्डिंग टू दिस योर ग्रुप शुड हैव द प्लस आई इफेक्ट. अगर उसके पास प्लस आई इफेक्ट है तो इट विल डिक्रीज द acid strength. And if the group is having the minus I effect, so it will increase the acid strength. अगर आपके ग्रुप के पास CH3 ग्रुप है तो CH3 ग्रुप क्या हो जाएगा? It is going to give you the plus I effect. ये हमने 11th में किया हुआ है. और जो ब्रोमीन हो गया इट इज द नेगेटिव, इट इज इलेक्ट्रोनेगेटिव इन द नेचर, तो ये क्या देगा? प्लस आई इफेक्ट देगा. देयरफॉर जहां जहां पे वी आर हैविंग द ब्रोमीन इट इज गोइंग टू बी द स्ट्रॉन्ग एसिड. इतना समझ में आ गया? अब हमें ये पता लग गया कि योर फर्स्ट एंड सेकेंड वन दे आर गोइंग टू बी द मोर एसिडिक कंपेयर टू दिस एंड दिस. क्यों? क्योंकि इनके पास देयर इज ओनली द मिथाइल ग्रुप्स एंड मिथाइल ग्रुप अल्टीमेटली इंट्रोड्यूसेस द मोर प्लस आई इफेक्ट. ओके, अब वी हैव गॉट द चॉइस ऑफ दीज टू कंपाउंड्स जिसके पास बी आर है. नाउ व्हेन यू आर गोइंग टू लुक दीज थ्री कंपाउंड्स, तो हमारे पास क्या है? एक कंपाउंड ये है और एक कंपाउंड ये है. 1 2 3 4 1 2 3 4. Now it means that your
One is your isopropyl group और एक आपका है propyl group. When you are going to talk about the isopropyl group, तो यहाँ पे क्या है, there will be the more plus I effect. क्यों? Because of the CH3, there will be the more plus I effect. Therefore, you can say that your isopropyl group is going to be the weaker acid than the propyl group. तो अब इसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या हो गई? CH3 CH2 CH COOH CH3 CH2 CH2 COOH, then your isopropyl, and then your this. Got it? Got the answer for this part, beta? Yes, ma'am. समझ में आ रहा है ना? Understanding or not? Yes, ma'am. Yes. Coming to the Yes, ma'am. C part. Your C part is what? कि again we need to show the increasing order, और increasing order जो है उसके अंदर you have to show the acidic strength. अब ये वाला बहुत easy है. Every one of you can give the answer over here. Benzoic acid is given 4 nitro benzoic acid है 3,4 dinitro benzoic acid, and then 4 methoxy benzoic acid. ये 4 हैं. अब it is very easy क्यों है? Because you know that we have the 2 types of the group. एक तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो गया. इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर किसी कार्बन चेन के अंदर प्रेजेंट है तो इट इज गोइंग टू डिक्रीज द एसिडिक स्ट्रेंथ. अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है किसी के पास तो इट इज गोइंग टू इंक्रीज द एसिडिक स्ट्रेंथ. नाउ आपका 4 मिथॉक्सी बेंजोइक एसिड, 4 मिथॉक्सी बेंजोइक एसिड जो है इसके पास क्या हो गया? इट इज हैविंग द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप. इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की वजह से इट इज गोइंग टू बी अ वीकर एसिड. इन दोनों के पास यू आर हैविंग द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो इट इज फॉर श्योर दैट दे आर गोइंग टू बी द योर एसिडिक इन द नेचर. बेंजोइक एसिड इसके पास जो है बिकॉज इट इज नॉट हैविंग एनीथिंग मच, तो इट इज ऑल्सो गोइंग टू बी अ वीकर एसिड, बट इट इज गोइंग टू बी द लेस वीकर देन द 4 मिथॉक्सी बेंजोइक एसिड. क्यों? क्योंकि इसके पास ना ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है ना ही इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है. अब हमारे पास आ जाता है 4 नाइट्रोबेंजोइक एसिड एंड 3,4 डाइनाइट्रोबेंजोइक एसिड. मोर द नाइट्रो ग्रुप मोर विल बी द एसिडिक स्ट्रेंथ. यहाँ पे यू आर हैविंग एट द 2 पोजीशंस 2 नाइट्रो ग्रुप्स हैं, therefore it is going to be the strongest among these 4 and it will be the lesser strong. तो what will be your increasing order? पहले आप लिखोगे 4 methoxy benzoic acid, then your benzoic acid, then your 4 nitro benzoic acid,
and then 3,4 dinitro benzoic acid. Okay, this much is clear to everyone. Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब आज एक आप लोगों का जो काम होगा, दैट विल बी योर वर्क दिस ऑल्सो, कि ये जो हमने किया है दिस मच यू रिक्वायर टू कंप्लीट इन योर नोट कॉपीज. उसके अलावा एक बारी क्लास 11th का आपका, पहले भी मैंने बोला था कि इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेटिंग इफेक्ट, ये सारे एक बारी देख लेना, बिकॉज इन सच टाइप ऑफ द चैप्टर्स वी एक्सपेक्ट द मोर एसिडिटी, बेसिसिटी, इस टाइप के क्वेश्चंस. ओके, नाउ how much time is remaining? 30 तक होती है ना क्लास अपनी? Yes, ma'am. Okay. Yes, Then ma'am. we are going to do up to here only today. Tomorrow we will start with